حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، اور جب آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خلافت آپ کے دامن میں تھی، خلیفہ تھے، 36 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکمرانی، اور آپ مسجد نبوی کے اندر ممبر پر کھڑے ہو کر جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حسن حسین جب سامنے سے آئے، کھڑے ہو گئے بیچ مجمع میں، حسن حسین ابھی بچے تھے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کو مخاطب کر کے کہ یہ ممبر تو ہمارے نانا جان کا ہے، اسے فوراً خالی کرو، یہ ممبر ہمارے نانا جان کا ہے، اس ممبر سے اتر جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم، کتنی شان ہے ان کی، حضرت عمر فاروق اعظم کی، کتنے لمبے قد کے آدمی، اور جو 36 لاکھ مربع میل پر جن کی حکمرانی، جو ایک اشارہ کر دیں تو آدھی سے زیادہ دنیا ایک لائن میں کھڑی ہو جائے، یہ شانوں کے مالک۔ لیکن جب حسن حسین نے کہا کہ ممبر چھوڑیے، یہ ممبر تو ہمارے نانا جان کا ہے، ذرہ برابر بھی دیر نہیں کی، ممبر سے نیچے اتر آئے اور جھک گئے اس طرح سے، اور کہا کہ شہزادو یہ ممبر بھی تمہارا ہے، تمہارے نانا جان کا ہے، اور اپنی بالکل امامہ اتار کر اس طرح سے کہا کہ یہ جو عمر کے سر پر بال اگے ہیں یہ بھی تمہارے نانا جان کے صدقے میں اگے ہیں۔ پگڑی اتار دینا یہ واضح کرتا ہے کہ یہ جو آج عمر کے سر پر جو خلافت کا جو تاج ہے یہ بھی تمہارے صدقے میں مجھے عطا ہوا ہے، یعنی میرے سر پہ جو بال اگے ہیں یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اور پھر جب دیکھا حسنین کریمین نے کہ ممبر چھوڑ دیا اور یہ جملے ارشاد فرمائے تو وہ بھی تو حضور کے پالے ہوئے تھے، تربیت ان کی حضور نے کی تھی، کہا کہ امیر المومنین دوبارہ چلے جائیے ممبر پہ، ہم تو بس دیکھنا چاہ رہے تھے کہ عمر فاروق اعظم امیر المومنین میں کرسی ملنے کے بعد تبدیلی تو نہیں آ گئی ہے؟ ہاں، عمر کرسی ملنے کے بعد بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھے۔ ایک اور مقام پر حضرت عمر فاروق اعظم نے دنیا کو دکھایا کہ حسنین کریمین کی شان کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ ملک شام سے آئے، چونکہ حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کو گورنر بنایا ملک شام کا۔ جب آپ آئے ملک شام سے مدینہ بہت اہم معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے، رعایا سے متعلق، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت امیر معاویہ کو اپنے پرائیویٹ روم میں لیا گفتگو کرنے کے لیے، اور دروازہ لوک کر دیا کہ اب کوئی انٹری نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو آپ کے بیٹے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کی، وہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو اجازت نہیں ملی، دروازے پر بیٹھ گئے کہ جب میٹنگ ختم ہوگی تو والد گرامی سے مل لوں گا۔ اتنے میں امام حسین آئے، اور ایک روایت میں یہ کہ امام حسن آئے۔ تو جب امام حسین آئے انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر دروازے پر بیٹھے ہیں، کہا کیسے بیٹھے ہو؟ کہا کہ والد گرامی سے ملنا تھا لیکن انٹری نہیں ہے، کوئی اہم میٹنگ چل رہی ہے ملک شام کے گورنر کے ساتھ، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب یہ بات سنی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ کیسے آئے؟ امام حسین سے پوچھا، کہا کہ مجھے بھی ملنا تھا، تو کہا کہ آپ چلے جائیے۔ تو حضرت امام حسین کے جملے کہ جب بیٹا نہیں جا سکتا، بیٹے کو اجازت نہیں ہے، تو میں تو علی کا بیٹا ہوں، جب تم بیٹے ہو کر تمہیں اجازت نہیں تو میں تو علی کا بیٹا ہوں، مجھے کہاں سے اجازت ملے گی؟ آپ چلے گئے۔ جب میٹنگ ختم ہوئی حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ بیٹے عبداللہ ابن عمر دروازے پر بیٹھے ہیں، کہا کہ کیسا آنا ہوا؟ کہا کہ میری بعد میں پوچھنا، پہلے امام حسین آئے ہیں یہاں پہ۔ کہا کہ امام حسین بھی آئے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا تم نے اندر کیوں نہ بھیجا؟ تو کہا میں نے تو کہا کہ آپ چلے جاؤ، لیکن وہ خود سے نہیں گئے کہ جب تمہیں اجازت نہیں ہے تو مجھے کہاں سے اجازت ہوگی؟ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت امام حسین کی تلاش میں نکلے تو مسجد نبوی کے دروازے پر مل گئے امام حسین۔ کہا کہ آپ کیوں نہیں آئے ملنے کے لیے؟ کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ جب بیٹے کی اجازت نہیں، آپ کی اہم میٹنگ چل رہی تھی ملک شام کے گورنر کے ساتھ، تو جب بیٹے کو اجازت نہیں تو علی کے بیٹے کو کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس وقت جملہ ارشاد فرمایا، کہا وہ میرا بیٹا تھا اس لیے اس کو اجازت نہیں دی گئی، لیکن تم تو نبی کے بیٹے تھے، تمہیں اجازت لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ سارے پروٹوکول دنیا کے لیے ہیں لیکن نبی کے گھرانے کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ تمہارا جب جی چاہے تم عمر فاروق اعظم کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو جایا کرو۔ شان کون بیان کر رہا؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔
इमाम हुसैन को जब भी उमर फारूक आजम मिलते तो अमीरुल मोमिनीन थे, और हजरत इमाम हुसैन बहुत छोटे थे हजरत उमर फारूक आजम के सामने, लेकिन जब भी आमना सामना होता तो हजरत उमर फारूक आजम फौरन कहते अस्सलाम वालेकुम। इमाम हुसैन वालेकुम अस्सलाम। जब भी मुलाकात होती मदीने में तो हजरत उमर फारूक आजम कभी मौका ही नहीं देते कि इमाम हुसैन सलाम करें, खुद से पहल करके अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग होते हैं, बैठे रहते हैं कि यही आके सलाम करेगा, लेकिन सीखें, इस्लाम की तरबियत देखें, इस्लाम का मिजाज, इस्लाम क्या सिखाता है नहीं इस तरह से। जो दुकानदार का जो सेठ है वो चाहता है कि जितने मेरी दुकान में काम करते हैं वही सुबह आकर सलाम करें, और अगर उनका भी कोई सेठ है तो वो ये चाहता है कि मुझे ही सलाम करें। आप करीब जाएंगे तो वो सलाम नहीं करेंगे कि ये आया यही सलाम करेगा, सामने से गुजर रहे हैं तो यही सलाम करेगा। और जो बड़े हैं वो छोटों को तो सलाम करने में बेइज्जती महसूस समझते हैं कि अगर कोई दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी वाला हमारा बुजुर्ग अगर बच्चे को सलाम कर दे तो ये तो मेरी तौहीन हो गई, बच्चा ही मुझे सलाम करेगा। लेकिन इस्लाम की तरबियत ये नहीं है। हुजूर जब मदीने की गलियों में निकलते और अगर बच्चे खेलते हुए होते मदीने की गलियों में तो हुजूर बच्चों को सलाम किया करते थे, उनसे इज्जत वाला कौन होगा। लेकिन इस्लाम का मिजाज ये है कि सलाम जो पहला करेगा नेकिया वो ज्यादा दामन में संभालेगा। तो हजरत इमाम हुसैन से जब भी हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम मिलते तो उमर फारूक आजम देखते कहते थे अस्सलाम वालेकुम। इमाम हुसैन की कोशिश ये रहती कभी तो मुझे भी मौका मिले कि मैं भी अमीरुल मोमिनीन को सलाम करूं। तो एक मरतबा क्या किया, इमाम हुसैन ने जब देखा कि दूर से अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम आ रहे हैं तो इमाम हुसैन ने तो देख लिया कि अमीरुल मोमिनीन सामने से आ रहे हैं और ठान लिया कि आज तो सलाम पहले मैं ही करूंगा। और उधर से उमर फारूक आजम ने नहीं देखा कि इमाम हुसैन हैं, और जब इमाम हुसैन ने देख लिया तो आप सुतून की आड़ में हो गए, खंबा थम जिसे बोलते हैं, सुतून की आड़ में हो गए, छुप गए कि जैसे अमीरुल मोमिनीन आएंगे फौरन सलाम कर दूंगा निकल के थम की आड़ से। इंतजार में इमाम हुसैन के आने वाले सलाम करूं। अभी निकल ही रहे थे सलाम करने के लिए कि उमर फारूक आजम ने फिर कह दिया अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अब हैरान इमाम हुसैन, वालेकुम अस्सलाम तो ले लिया, लेकिन कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन बताओ आज तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां छुपा हुआ हूं, जुमला सुनना मेरा। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि हुसैन तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे कैसे पता चला, सुतून के पीछे तुम छुपे हुए हो, तुम्हारी शक्ल भी मुस्तफा वाली है, तुम्हारी खुशबू भी मुस्तफा वाली है। क्या महकते हैं महकने वाले वो घराना, ऐसा है कि वो दूर से महक जाता है। फरमाते तुम्हारी शक्ल भी मुस्तफा वाली है, तुम्हारी खुशबू भी मुस्तफा वाली है। मैंने खुशबू से पहचान लिया कि सुतून के आड़ में जो है हुसैन छुपे हुए हैं। ये किनकी शान है? कौन अमीरुल मोमिनीन? वो सलाम कर रहे पहले इमाम हुसैन की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा का नाम आपने सुना होगा, जो सबसे बड़े मुहद्दिस, जिन्हें 6 लाख से ज्यादा हदीस याद, जिन्होंने हुजूर से सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की हैं, जो हमेशा हुजूर की सोहबत में रहे। हजरत अबू हुरैरा के बारे में ये रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा और हजरत इमाम हुसैन जब दोनों जनाजे में गए शिरकत करने, इमाम हुसैन ने जनाजा पढ़ाया, हजरत अबू हुरैरा साथ। शान ये है कि सबसे ज्यादा हदीस रिवायत करने वाले, सबसे बड़े हुजूर की उम्मत के मुहद्दिस हजरत अबू हुरैरा जब इमाम हुसैन के साथ गए जनाजे में शिरकत करने के लिए, इमाम हुसैन ने जनाजा पढ़ाया। जब इमाम हुसैन जनाजा पढ़ाकर फारिग हुए और जब आप आए तो आप अपनी जूतियों पे पत्थर पर बैठे ताकि जूतियां पहने आराम से। दौड़कर हजरत अबू हुरैरा आए, और जब हजरत अबू हुरैरा आए तो अपनी चादर ली और इमाम हुसैन के तलवों पर जो मिट्टी लगी हुई थी अपने दामन से उसको झाड़ने लगे। शान समझें हसनैन करीमैन की, दामन से इमाम हुसैन के तलवों से जो मिट्टी लगी उसको साफ करने लगे, और साफ करने के बाद नालैन जूता उठाकर आपके कदमों में पहना दिया। इमाम हुसैन ने जो बात कहा कि अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हो तुम? तो हजरत अबू हुरैरा क्या फरमाते हैं कि हुसैन जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, तुम्हारी शान जो मुझे मालूम है, अगर दुनिया वालों को वो शान मालूम हो जाए तो ये जूता पहनाना तो कम चीज है, लोग तुम्हें अपनी गर्दनों पर सवार कर लेंगे। तुम्हारी तो शान ये है कि मैंने तो सिर्फ जूता पहनाया है,
दुनिया पर तुम्हारी शान अगर जाहिर हो जाए तो तुम्हारे कदमों को तो वो जमीन पर रखने ही नहीं देंगे। ये कौन बयान कर रहा शान? हजरत अबू हुरैरा, जो इस उम्मत के सबसे बड़े मुहद्दिस, जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीस बयान की, लेकिन इमाम हुसैन की शान दुनिया वालों को ये बता रहे हैं। हुसैन कोई मामूली बंदा नहीं है, हुसैन वो है जो इस उम्मत का सबसे बड़ा मुहद्दिस, जिसके तलवों को अपने दामन से साफ करना सआदत समझता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हमने कितनी मोहब्बत की, हमारी तो सिर्फ ज़बानी मोहब्बत है। हुसैन 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 के नाम पर भी खुराफात हम करते हैं। मुहर्रम आने वाला, ढोल कितने बजेंगे, ताशा कितना बजेगा, और पहले से मेहंदी जना अल्लाह जाने क्या क्या रस्में निकाल रखी हैं। ढोल ना बजाए तो मुहर्रम नहीं, मुहर्रम ताजिया ना निकाले तो समझते नहीं मुहर्रम नहीं हुआ। हालांकि आला हजरत का शरीफ फतवा है कि ये जो आम तौर से ताजिया बनाया जाता है, इसमें चंदा देना भी हराम है, इस ताजिए को बनाना भी हराम है, और ढोल ताशा बजाना उससे ज्यादा शदीद हराम है। लेकिन सब यजीदियों के ये काम, यजीदियों ने इनको राइज किया कि जब इमाम हुसैन का सर मुल्क शाम लाया गया दमिश्क के अंदर, तो यजीद ने कहा था अपनी फतह और कामयाबी पर कि सारे शहर में ढोल ताशे बजाए जाएं ताकि दुनिया को पता चल जाए यजीद जीत गया है, हुसैन हार गया है। तो उस वक्त सारे दमिश्क के अंदर ढोल ताशे जिन्होंने बजाए थे वो यजीदी थे। आज जो भी ढोल ताशे को बजा रहा है, इसे राइज कर रहा है, वो किस सफ में खड़ा हो जाएगा। यकीनन वो यजीदियत को फरोग दे रहा है, हुसैनियत इसके खिलाफ है। इमाम हुसैन ने तो सर इसलिए कटाया था ताकि खुराफात से दीन वाज़े हो जाए, खुराफात दीन से जुदा हो जाए। यजीद ने खुराफात ही तो पैदा की थी, शराब को वो ले आया इस्लाम के अंदर, जिनाकारी को उसने जायज करार दे दिया, और तरह तरह की खुराफात इस्लाम के अंदर यजीद ने जब दाखिल की, इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े हो गए और ये वाज़े कर दिया दुनिया वालों के सामने कि हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है। दीन पर कायम रहना ये हुसैनियत है, और खुराफात को फरोग देना ये यजीदियत है। तो आज कहां मुसलमान जा रहे हैं? ढोल के नाम पर, ताशों के नाम पर, ताजियादारी के नाम पर दुनिया भर की खुराफात मुसलमान करते हैं। हुसैन से अगर इश्क है, इन ढोल ताशों को लात मारो, इस मुरव्वजा ताजियादारी को खत्म करो। यकीनन हुसैन से सच्ची वफादारी यही होगी कि तुमने शरीयत का दामन थामा है, इन खुराफात का दामन तुमने बिल्कुल नहीं थामा है। आपके बेटे जाएं, मातम में जाएं, हरगिज मना करें, ढोल ताशा बजाएं, हरगिज मना करें, इससे इमाम हुसैन की रूह को तकलीफ होती है। ये हुसैन से मोहब्बत थोड़ी करना है, हुसैन को तकलीफ देना है। हुसैन का सर दमिश्क के अंदर जब नेज़े पर था तो इमाम हुसैन का सर नेज़े पर पीछे पीछे, आगे यजीदी जो थे ढोल ताशे बजाते हुए तो जा रहे थे। आज वही मुरव्वजा ताज़ियादारी की शक्ल इख्तियार कर गया, ढोल ताशे बजाते जा रहे हैं। किसको आप खुश कर रहे हैं? हुसैन इससे खुश नहीं होंगे, हुसैन तो उसी से खुश होंगे कि तुम 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। हमने करबला में नमाज को नहीं छोड़ा। तुम करबला के हालात इंशाअल्लाह तुम कल सुनोगे मुझसे, किस तरह के करबला के हालात हैं, जब हमारा कल आखिरी बयान होगा आशूरा की रात में। लेकिन सुना, इमाम हुसैन ने करबला के उस माहौल में भी नमाज को नहीं छोड़ा, और आज हम नमाज छोड़कर और ढोल ताशे बजाकर ये समझते हैं कि हम पक्के वाले हुसैनी हैं। नमाजें तो यजीद नहीं पढ़ता था, नमाजों को तो खत्म करना वो चाहता था। तुम किसके रास्ते पर जा रहे हो? ये अलग गुफ्तगू हो गई। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो हुजूर के सहाबी हैं, जिनके बारे में यह है वो कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, सबसे बड़े मुफस्सिर, वो जानते हैं कुरान की आयत कब नाजिल हुई, किसके हक में नाजिल हुई। यानी तफसीर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, सबसे मोतबर तफसीर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की है। कुरान के सबसे बड़े आलिम, वो बाग में तशरीफ फरमा, सुने क्या है इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम हुसैन की शान। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास अपने बाग में मौजूद, इतने में इमाम हसन, इमाम हुसैन अपनी सवारियों पर सवार होकर आ गई बाग के अंदर। और जब बाग के अंदर आए तो इमाम हसन, इमाम हुसैन जब दोनों बाग के अंदर दाखिल हुए, इस रिवायत को रिवायत करने वाले के नाम है, रावी का नाम मुदरिक, अबू जियाद मुदरिक। इमाम हसन ने उनसे कहा कि नाश्ता लाओ, भूख लग रही है। नाश्ता लाया गया इमाम हसन की बारगाह में। तो नाश्ते में क्या लेकर आए? वो बाग के अंदर 2 रोटी लाए, नमक लाए, थोड़ी सी सब्जी लाए, और इमाम हसन की बारगाह में पेश कर दिया। इमाम हसन ने खाया, नाश्ता किया, फिर जो जुमले इरशाद फरमाए, मातिया बहाद ताम, 2 रोटी खाई नमक से, थोड़ी सी सब्जी से। कहते हैं ये कितना शानदार नाश्ता है, जो आजकल के
नौजवान बच्चे अपनी माओ को तंग करते रहते हैं कि ये क्या पका कर रख दिया, ये दाल क्या पका कर रख दी, खाने की बुराइयां, ये सब्जी मैं नहीं खाऊंगा। आजकल का माहौल है कि नहीं? हमारे नौजवानों का जायका इतना चढ़ गया है कि माएँ परेशान है, बहनें परेशान है कि इसे तो कोई सब्जी अच्छी लगती नहीं, लेकिन हुजूर ने कभी सब्जी को बुरा नहीं कहा। यहाँ इमाम हसन की सीरत देखें, इतना मामूली सा नाश्ता करने के बाद कहते माँ क्या बहादत ताम, कितना शानदार नाश्ता तुमने हमें करा दिया। इतने में इमाम हसन इमाम हुसैन के जो खुद्दाम थे वो आलीशान नाश्ता लेकर आ गए तैयार करके। तो हजरत इमाम हसन ने कहा बाग के अंदर जितने मजदूरी करने वाले हैं सारों को बुला लाओ। सारे बुलाए गए तो सारों को कहा कि हमारा नाश्ता इन सारे मजदूरों को खिला दो। मुदरिक ने कहा कि हुजूर आप नहीं करेंगे, क्योंकि आलीशान नाश्ता था, बहुत अच्छी ग़िज़ाओं से तैयार था। इमाम हसन ने फरमाया कि जो हमने वो नाश्ता तुम्हारी 2 रोटी नमक से खा ली हैं, वो नाश्ता हमारे नज़दीक इस नाश्ते से अफजल वाला है। जो अल्लाह वाले होते हैं वो इन लज्जतों से बचा करते हैं। नाश्ता हुआ, इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों ने नाश्ता किया। अब बारी आई वापसी की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो इस उम्मत के सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान, जब सवार होने की बारी आई, इमाम हसन जब सवारी की तरफ चले तो रिकाब जानते हो जिसमें पैर रख के सवार होते हैं घोड़े पे, तो आपने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो उम्र में बहुत बड़े, आपने इस तरह से रकाब को थाम लिया। आज की डेट में जैसे नौकर जो होते हैं गाड़ी का गेट खोलते हैं और बंद करते हैं सेठ के लिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रिकाब थामी और हजरत इमाम हसन ने अपना पैर रखा, सवार हो गए। इमाम हुसैन आए तो भी दौड़ के हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रिकाब थामी, हजरत इमाम हुसैन ने भी पैर रखा, सवार हो गए। मुदरिक जो रिवायत करने वाले रावी हैं वो देख रहे थे, ताज्जुब में पड़ रहे थे कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास कितनी उम्र दराज इंसान और इमाम हसन हुसैन के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब दोनों चले गए तो ताज्जुब से पूछा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कि आप ये क्या कर रहे थे? वो तो उम्र में आपसे बहुत दोनों छोटे हैं, आप उम्र में कितने बड़े हैं, मुफस्सिर कुरान आप हैं, कुरान की तफसीर का इल्म आपको है, आपकी ये शान है, लेकिन आप उनके लिए रिकाब थाम रहे थे दोनों शहजादों के लिए। तो आपने जब ये जुमला कहा और जब उसकी गुफ्तगू सुनी तो कहा या लुका, अरबी में बोलते हैं कम अकल, या लुका अंत तालम, क्या तू जानता है ये कौन 2 बेटे थे? कम अकल तू जानता है ये दोनों शहजादे कौन थे? हाज़ान इब्ना रसूलिल्लाह, ये दोनों शहजादे अल्लाह के रसूल के शहजादे थे। हाँ, ये इब्ना रसूलिल्लाह, ये दोनों शहजादे कोई आम शहजादे नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के शहजादे थे। और सुनो, आज ये इन दोनों ही का सदका है, ये खुश नसीबी है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास के दामन में ये सआदत आई कि उसने रसूलुल्लाह के शहजादों की ये जो खिदमत की है और उनको सवारी पर सवार किया है, ये सिर्फ अल्लाह की नेमत है जो अब्दुल्ला बिन अब्बास के दामन में आई है। किसकी शान बयान हो रही है? इमाम हसन इमाम हुसैन की। और इमाम हसन हुसैन सहाबा ने उनके मर्तबे को जाना और ताबीन तब ताबीन तक उनके मर्तबों को जाना, लेकिन आज के माहौल में आकर उनके मर्तबों का सिर्फ हुसैनी नाम सिर्फ हुसैनी, हम हुसैनी हैं। उसके अलावा उनकी क्या बातें हैं, उनकी क्या सीरत है, वो किस तरह से गरीबों की मदद करते थे, वो किस तरह से गरीबों को खिलाते थे, वो किस तरह से हुजूर की शरीयत को प्रमोट करते थे, उससे आज किसी को कोई वास्ता नहीं। क्या इमाम हुसैन की तालीम है, क्या इमाम हसन की तालीम है, क्या तरबियत है, इसको आप पढ़ें दंग रह जाएंगे कि हजरत इमाम हसन हो या हुसैन हो, कोई भी गरीब उनके अगर घर में आ जाता इतना देते कि माला माल होकर चला जाता। लेकिन आज क्या गरीबों का हाल? आज तो अगर कोई गरीब दावत कर दे तो अमीर जाने के लिए तैयार नहीं। यह माहौल है नहीं कि नहीं? किसी गरीब की शादी में कोई अमीर जाने तैयार नहीं। और अगर कोई अमीर दावत कर दे तो आप देखेंगे कि वीआईपी लोगों की टेबल अलग लगी है, गरीबों की टेबल अलग लगी है। वीआईपी लोगों की एंट्री इधर से है, जो गरीब है उनकी एंट्री इधर से है, खाने भी अलग कर दिए गए हैं। लेकिन दावा क्या है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, हम पक्के हुसैनी हैं। लेकिन इमाम हसन की सीरत देखो, जा रहे हैं रोड पर सवारी पर सवार होकर, फुटपाथ पर जो बैठे रहते हैं फकीर आदमी जिन्हें देखना कोई गवारा नहीं करता, वो बुलाते हैं कि नबी के नवासों आ जाओ। खाना खा रहे थे फुटपाथ पर बैठे हुए गरीब लोग मैले कुचैले कपड़ों में। इमाम हसन ने कहा क्या बात है? कहा आ जाओ हमारे साथ खाना खा लो। इमाम हसन फौरन सवारी रोकी,
कौन जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। लेकिन देखें अखलाक, किरदार, तरबियत देखें। सवारी रोकी, फुटपाथ पर, रोड पर बैठकर उन गरीबों के साथ कहा कि क्या खाना है, बोले ये किसी ने हमें दिया है। तो कहा कि फिर मैं नहीं खा सकता, क्योंकि हो सकता है किसी ने आप पर सदका किया हो फकीर समझ के, और सदका मेरे लिए जायज नहीं है। लेकिन मैं बैठ गया हूं तुम्हारी दिलजोई के लिए, लेकिन अब मेरी बात भी सुन लो, मैं तुम्हारे बुलावे पर आ गया हूं, अब मैं तुम्हें अपने घर बुलाता हूं। हाँ, तुम्हें भी मेरी दावत कबूल करनी होगी। बाकायदा उन फकरा को बुलाया गया, और एक रिवायत में एक इमाम हुसैन ने बाकायदा अपनी शरीक हयात से कहा कि आज, बल्कि शरीक हयात ने पेशकश की कि हमारे घर में कुछ रकम जमा है, लजीज गोश्त है, आप अपने स्टेटस के लोगों को बुला कर लाओ, जो आपके स्टेटस के लोग हैं, बराबरी के लोग हैं, उनके लिए हम अच्छा खाना भी बनाएंगे, उनके लिए अच्छी खुशबू भी हमने तैयार की है, जोड़े भी तैयार किए हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा अच्छा मैं अपने स्टेटस के लोग बुला कर लाता हूं। गए मदीने की गलियों में, मस्जिद नबवी में, जहां जो गरीब मिला उसको अपने साथ ले आए कि मेरे घर में तुम्हारी दावत है। हाँ, गरीबों की भी किस्मत देखो कि जो नबी के घराने के मेहमान बन रहे हैं। आए सारे गरीब। पड़ोसन कहती है इमाम हुसैन की बीवी से कि तुमने कहा था अपने स्टेटस के लोग लाना, ये तो सारे मदीने के फुकरा को उठा कर ले आए हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा अंदर ले जाकर अपनी बीवी को, तुझे उस हक की कसम जो मेरा हक तुझ पर है, जो तूने खाना बनाया है, जो तूने अमीर कबीर लोगों के लिए तैयारियां की हैं, तू जर्रा बराबर भी नहीं बचा कर रखेगी, सारा दस्तरखान पर पेश करेगी। ये किसकी दावत हो रही है? गरीबों की। और जब कहा हाँ, सारा खाना, उम्दा किस्म का लजीज खाना सारा दस्तरखान पर बिछा दिया गया। और बाद में इमाम हुसैन ने बाकायदा सारे को एक एक जोड़ी कपड़े भी अता फरमाए, उम्दा किस्म की खुशबू भी अता फरमाई। सीरत क्या है कि वो नबी का घराना, नबी के घराने वाले सारे हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहे। लेकिन आज की डेट में जिसे अल्लाह ने नवाज किया है अहले बैत अताहार के टुकड़ों के सत्ते में, आज वही गरीब को दूर कर देता है। न घर बुलाना तैयार है, न दावत पर अगर आ भी गया तो प्रोटोकॉल हो गया, वीआईपी इधर से जाएंगे और आम मजदूर आदमी इधर से जाएगा, उनके लिए खाने अलग, इनके लिए खाने अलग। ये कहां से इस्लाम के अंदर ये बुरी रस्म पैदा हो गई है? अरे उम्मत मुस्लिमा एक है, नबी के सारे उम्मती बराबर हैं। जब वो इबादत करने के लिए जब अल्लाह के घर में होते हैं, वहां ना कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, सारे अल्लाह के घर में जब बराबर हैं, तो तेरे घर में भी जब जाएंगे तो सारे के सारे बराबर हैं। तेरा घर मस्जिद से बड़ा नहीं है, मस्जिद से अजमत वाला नहीं है। जब अल्लाह ने अपने घर बुलाकर सारे को एक सफ में खड़ा कर दिया है, तू कौन होता है जो हुजूर की उम्मत के दरमियान फर्क करता है? वीआईपी इधर से है, नॉन वीआईपी इधर से है।